Good morning, everyone. 12th Commerce, English Medium, Economics, Chapter number 9 Foreign Trade. Uh, this is things it is aware for us और हम सब इसको जानते हैं अच्छी तरीके से. Now for introductions. The geographical boundaries of our country, like all countries, is determined. There are legal restrictions and sometimes prohibited on crossing geographical boundaries of our countries. Then have we ever thought that how do we have a Korean refrigerator, Japanese TV in our home, German cars on our roads, American tractor in our farms, UK made shoes and garments in our malls? Do we know that bulk of the petrols, the diesels with which our vehicles run come from the Gulf countries? Here we will understand in this chapter that the activity exchanging goods and services, technology etc by countries across the geographical boundaries is called international trade. अब देखते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज़ के गुड्स एंड सर्विसेज का हम यहाँ पर बैठे बैठे यूज़ करते हैं और हमारी कंट्रीज़ का जो गुड्स है उसका अनदर कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग. सो व्हेन एवर एनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ held between two countries, that is known as international trade. Besides, we will also understand some important aspects of international trade. Let's see meaning of domestic and international like a foreign trade. Now, trade means a commercial business activities which involve exchange of goods, services, resources, capitals, technology, know and how, intellectuals, property etc. ट्रेड एंड कॉमर्शियल थिंग्स के अंदर हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं उससे रिलेटेड जो रिसोर्सेज होते हैं, कैपिटल होती है, टेक्नोलॉजी होती है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ का इन्वॉल्वेशन होता है, एक्चुअल्स हो या इनएक्चुअल्स हो. इन अदर वर्ड, ट्रेड इज़ एन एक्टिविटी इन विच सच अ गुड्स आर एक्सचेंज फॉर अ अर्निंग प्रॉफिट. यहाँ पे हम जो भी एक्सचेंज करते हैं उसका मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट. Activity of trade which takes place within the geographical boundary of a nation is called internal domestic trade, and trade activity taking place outside of the geographical boundary of a country is called international trade. In short में अगर कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर ट्रेडिंग होती है दिस इज़ अ नोन एज इंटरनल ट्रेड. कंट्री के बाहर जस्ट लाइक अ टू कंट्रीज़ एंड मोर देन टू कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल एक्टिविटीज़. जैसे डोमेस्टिक की इंटरनल की बात की जाए तो पंजाब और गुजरात के बीच में जो ट्रेडिंग की एक्टिविटीज़ होगी दैट इज़ नॉन एज इंटरनल, और इंडिया और जापान के बीच में जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होगी वो फॉरेन ट्रेड के नाम पे या इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से जाना जाएगा. नाउ रीजंस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. The main reasons for occurrence of the trade stated in the economics are as below. First आता है difference in factors endowment in various countries. Different countries are endowed with different factors of productions in different proportions. हर कंट्री में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो अलग अलग है. कहीं पर ज़्यादा हैं, कहीं पर कम है, कहीं पर बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है तो कहीं पर ओल्ड एंड ट्रेडिशनल मेथड ही काम कर रही. Besides, all countries may not have all the factors necessary for the productions of all types of goods. Hence, countries trade in the resources, factors of productions and technology to fulfill their requirement. अगर किसी भी कंट्रीज़ के पास प्रॉपरली गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्शंस के फैक्टर्स और टेक्नोलॉजी प्रॉपरली रेशियो में होगी जितनी उसकी ज़रूरत होगी तो वहाँ पर बहुत ही बेटर क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस होगा और उसको आप आउटसाइड कंट्री के बाहर सेल्स भी कर सकते हैं. लेकिन अगर सारे के सारे फैक्टर्स और टेक्नोलॉजी प्रॉपरली रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं होंगे तो आप चाह करके भी इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर प्लेसेस नहीं ले सकते. सेकेंड आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस. Owing to difference in availability of factors of productions and resources, the cost of productions of goods and services is also different in different countries. अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस
अलग अलग होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है तो कहीं पर कम होती है। दैट इज़ अ डिपेंडेंट ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो उसकी प्राइस भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो वहाँ की प्राइस भी कम होगी। जैसे कि इंडिया और चाइना का ले लो, चाइना के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है तो इसीलिए वहाँ की जो प्राइस होती है गुड्स की वो कैसी होती है, चीप होती है। Now, scarcity of factors leads to higher price of those factors in a country and hence to a higher cost of productions of goods and services. When domestic cost of production is higher, it becomes cheaper and easier to import and such a goods and services from countries where they are produced cheaply. हाँ, ये चीज़ है कि जिस गुड्स की क्वालिटी बेटर होगी बट प्राइस उसकी चीप होगी, आसानी से वो गुड्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में और अपनी ही कंट्री में आसानी से उसको सेल्स किया जा सकता है। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो मैटर इन द इंटरनेशनल ट्रेड। सो इतना आपको अच्छे से करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।